Assalamu alaikum. I'm your host Slim bin Muhammad Rafi, and here is your YouTube channel Blind Justice. Today my topic is about the perks and the unjustified salaries, unjustified allowances and protocols to the judiciary. And that judiciary, which is a stain on which used to be when we had a Hindu and a Christian judge like Justice Cornelius and Justice Bhagwan Das, and then from the Pakistanis we had Justice Shafi, who took oath from our Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and who even will get the ink out of his pen that it belongs to the state, and that was the state of affairs. And now you look at these people and look at these bloodsuckers and look at that the last Chief Justice who has just gone, and then I'll show you the list of the judges, so you know that in this hammam sab nange, in this bath they are all without clothes, they are all naked. So you see for yourself whether you commit suicide, or you slap your own face, or you are forcibly removed from your home, or right, your daughter, your sister-in-law and your son, no matter what you are, whether you've been elected by millions of people, but whoever you are, whether you have been ex-prime minister, whether you are a ex-professor, vice-chancellor, you are a commissioner, it does really not matter. And you have some agencies, and look at the powers, and the powers is what you bestow upon them. You give it to them, the people give it to them. It's people's power passed on to them, and once it's with them, and see how blinded they are. And now recently the increase in that, when we are beggars, when no one is ready to give us even $1, nobody is ready to invest anything, because now country is being governed by crooks, by thieves, by robbers, and they are the one who the proven mafia, and by judiciary themselves. So you can see for yourself, whatever yardstick you take, you are being governed by mafia and robbers. So how could you feel safe? No one feels safe. And how many of you will quit this country and go and migrate? Well, even my age, who is very close to from saying goodbye to this life, whenever the God Almighty wishes me to go and I have to die, I have to die. Everyone has to face death. Every living thing has to. The kullu nafsan zaiqatul maut in Arabic mean everyone living has to face the taste of death, but they are not afraid. बल्कि जजेस की जो मराहत है, पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं, उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी तकरीबन 10 ममालिक जिनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, जजेस को मराहत और सहूलियात मिलती है, उसमें आती हैं। और इंसाफ की फराहमी में हमारी जुडिशरी का नंबर है 124वां। मुझे हैरत होती है, ये अफसोस की बात यह है कि जजेस की मराहत और सहूलियात में पाकिस्तान 5 और 10 पहले 10 ममालिक पे है दुनिया में, और इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान 124वीं नंबर पे है। मिस्टर चेयरमैन, हमारा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है 2020 की जो सर्वे है, उसमें 180 ममालिक में हमारी जुडिशरी 120 नंबर पर आ गई है। और हमारी जजेस की तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं कि एक जज की पेंशन जो है वो 6 और 7 लाख हैं। और मुझे नेशनल बैंक के एक बंदे ने बताया कि जिस दिन किसी जज की पेंशन की अदायगी होती है तो हम बाकी पेंशन से कहते हैं कि आज चले जाएं, आज बाकियों को अदायगी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी तादाद में तो पेंशन लेते हैं, लेकिन इंसाफ कहां है? मराहत है, सहूलियात हैं, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, प्रोटोकॉल है, लेकिन 2.1 मिलियन पेंडेंसी है और कोई इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। और सुप्रीम कोर्ट का और आला अदालतों का दरवाजा वो सोने की चाबी से खुलता है। जिसके पास सोने की चाबी नहीं है उसको अदालत तक रसाई मुमकिन नहीं है। इंसाफ खास तबके तक महदूद है। गरीब अवाम पाकिस्तान की अदालतों से, इंसाफ से वो महरूम है। मिस्टर चेयरमैन, जज साहिबान कहते हैं कि कोई सेक्रेट काव नहीं है, कोई सेक्रेट काव नहीं, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। लेकिन मैं जज साहिबान से पूछता हूं, जब ये पेंडेंसी है,
जब आप लोगों की कारकर्दगी ये है तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में आप लोग सेक्रेट काउ तो नहीं बने हुए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आड़ में, तौहीन अदालत की आड़ में क्या हमारे आला अदलिया और हमारे जस्टिस साहिबान वो खुद सेक्रेट काउ तो नहीं बने? अगर उनका कोई इंतहाई अफसोसनाक इकदाम है। अभी कोई जजेस की तनख्वाहें पिछले साल जुलाई में तो बढ़ाई गई थी, उस वक्त एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके तो तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई गई थी, और अब ये जो इम्पैक्ट है हर जज की तनख्वाह पर 10 लाख रुपए का तकरीबन इजाफा होगा और ये 2 मिलियन से ज़्यादा की सैलरी हो जाएगी। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जजेस को रिटायरमेंट के बाद भी इतनी ही रकम जितनी वो तनख्वाह की सूरत में लेते हैं उतनी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की शक्ल में मिलती है। और ऊपर सोने पे सुहागा 17 से बढ़ाकर जजों की तादाद भी 34 कर दी गई। यानी कि एक तरफ आपने सैलरीज उनके जो अलाउंसेज हैं वो बढ़ा दिए हैं और दूसरी तरफ जो है आपने जजों की तादाद बढ़ा दी है। इस वक्त मुल्क की जो हालत है वो ये है कि 300-350 अरब के टैक्स आपका शॉर्टफॉल है। आपके पास जो है वो कर्जे देने के लिए पैसे नहीं है, आप मजीद पैसे ले रहे हैं, आप अभी दोबारा टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप जो गरीब तबका है, जो मेहनत कश तबका है और जो तनख्वाहदार तबका है, आप उसका खून निचोड़ है। ना आपका यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है, ना वो ताजर जो है वो टैक्स देते हैं, ना सनतकार जो टैक्स देते हैं। जिन गरीबों से, जिन मुलाजमीन से आप तनख्वाहों से टैक्स काट कर जो है वो आप मराद दे देते हैं, ऐसे लोगों को जिनको आपको अंदाजा है कि इनको मराद देने से आपको शायद कोई फैसला आपके हक में कोई फैसला आ जाएगा या उनको आपके लिए कोई बेहतरी हो जाएगी, तो ये हुकूमत को जो है गैर तरक्याती अखराजात जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए और इस तरह की मराद को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस टाइम कहाँ खड़ी हुई है। आप जो है वो कर्जा लेते हैं और कर्जा देते हैं। हमारी जो ड्रिप इकॉनमी है, यानी कि हम 4 मुल्कों के सर पर चल रहे हैं। चाइना हमें कर्जा दिया है, हमने उसको रोल ओवर करवा लेते हैं। यूएई देता है, सऊदी अरब देता है, कतर देता है। इन 4 मुल्कों से हमें इमदाद मिलती है तो हमारे मामला चलते हैं। टैक्स हम इकट्ठा कर नहीं सकते, इंतजामी तौर पर हम इतने वीक हैं कि हम कुछ करना चाहें भी तो नहीं कर पाते। तो ये इसके ऊपर जो है हुकूमत को जो है वो सोचना चाहिए और इस किस्म के फैसलों से गुरेज करना चाहिए। अपने फायदे के लिए ये किया गया है, जजेस को खुश करने के लिए किया गया है, तो व्हाट एल्स दे वांट? जैसे हमने देखा कि अभी चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का ले आए, उसके बाद हम देख रहे हैं जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, आईनी बेंच बना दिया गया है। हाकवानी साहब, और कितना फायदा इन्होंने करना है जजेस का और कौन सा फायदा ऐसा है जो ये लेना चाह रहे हैं जजेस से? ये एक बड़ा अहम सवाल है, $1 मिलियन सवाल है। हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं। और आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बढ़ाने की बात भी हो चुकी है, उनके मेरे ख्याल में 12 जजेस करने लगे हैं और कोई बईद नहीं कि एक और एक्ट अचानक आ जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजेस बढ़ा देंगे, जो जहां से उनको मामूली सा भी खतरा लगता है। देखिए, हुकूमतें ये सियासी हुकूमत है। सियासी हुकूमत अपना उसकी जो ताकत होती है वो अवामी मैंडेट होता है, अवाम की सपोर्ट होती है। अगर कोई पोलिटिकल हुकूमत इन इंतजामी इक़दाम के जरिए, मुसलसल तरामीम के जरिए, नए एक्ट लाने के जरिए, अब देखें कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसमें 2-3 तरमीमें हो चुकी है। अभी सदर ऑर्डिनेंस जारी किया था, अब फिर दोबारा उन्होंने तरमीम कर दी। तो ये तब्दीलियां करने पे अगर सारा अपने आप को करें, समझ लो वो बहुत इनसिक्योर हुकूमत है, उनकी पब्लिक सपोर्ट नहीं है, उनकी रूट्स नहीं है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन आदिल साहब ने जिस तरह कहा, बिल्कुल उसकी तारीफ करूंगा, ये इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। ये इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मईशत इन हालात में है, बिल्कुल भी, और मैं तो समझता हूँ हमारे जो फाजिल जज साहबान है, हमारे मोहतरम जज साहबान है, उनको भी चाहिए, उनको ही चाहिए कि मसला रजा कराना तौर पर वो इस पर कोई एतराज करे या कोई कहे कि नहीं बहुत ज्यादा टू मच हो रहा है। बिल्कुल ही ऐसा जैसे कोई जवाब नहीं है। अभी आप देखें ना, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो डबल किया गया है, उनका सुप्रीम कोर्ट जज कितना आप उसे खर्च, अगर अखराजात देखे सालाना अखराजात, तो वो तो करोड़ रुपए में पड़ता है एक जज। तो 17 जजेस आप ये तो करोड़ अरबों पर काम चला जाएगा। और ये ऐसी सूरत में है कि लोअर जुडिशरी में 34 लाख केसेस कह रहे हैं कि 3 मिलियन से ज्यादा केसेस वहां पेंडिंग पड़े हैं।
मतलब 300,000 से 3 मिलियन ही बनता है। और खाकानी साहब, मुद्दत मुलाजमत में भी ये पर्क्स एंजॉय किए जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सूरत में भी वही पर्क्स एंजॉय किए जाएंगे। गरीब आवाम के लिए क्यों नहीं कोई सोच रहा आदिल साहब? गरीब आवाम के लिए भी कुछ सोचा जाए, उनकी भी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। गरीब तबका मजीद पिसता जा रहा है और जो अशराफिया है या अब हम देख रहे हैं कि जो अदलिया है उसको इस तरह से नवाजा जा रहा है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है, लाखों लाख का इजाफा। देखिए, पाकिस्तान में ना दो तरह के सिस्टम चलते हैं। जो मरात याफ्ता तबका है उसको और मरात से जो है वो नवाजा जाता है, जो गरीब है उसको उससे उसका और खून निचोड़ा जाता है। जब आप सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि 10% हमारे पास खजाना में पैसे नहीं है, हम 10% से 15% से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। जब आप एक मरात याफ्ता जो आपका तबका है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, जब इनके बढ़ाने की बात होती है तो फिर आप दिल खोल के जो है वो अपना सामने रख देते हैं और उनकी तनख्वाहें और मरात इस तरह से बढ़ा देते हैं जैसे पाकिस्तान के खजाने में जो है ना वो नोटों से भरे पड़े हैं। तो बदकिस्मती है, हुकूमत की पॉलिसीज हमेशा से जो है वो अपनी मफाद के लिए फोकस होता है उनका, अपने मफादात पर, और इस तरह इसी वजह से पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो इसी वजह से खराब है कि जिनसे आपको टैक्स लेके जिनको मराद देनी चाहिए, और यहाँ पर उल्टा निजाम है। आप गरीब तबके जिनके पास कुछ नहीं है उनसे आप मराद जो है ना वो टैक्स लेते हैं और उन तबके को देते हैं जिनको जरूरत नहीं है। अब इस सारे जो जिस सब डेफिसिट चल रहा है उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर ये बात हो रही है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाए। तो वो किस उससे मुतासर कौन होगा? ये जज तो ना जज मुतासर होंगे ना ब्यूरोक्रेट मुतासर होंगे, क्योंकि इनको अलाउंसेस इतने मिल जाते हैं कि उनकी बिजली के बिल उनके लिए कोई इश्यूज नहीं है। पिसेगा तो गरीब तबका थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में गुजारा करने वाला किस तरह से इतने भारी भारी बिल अदा करे? तो ये और इसी वजह से जो एक मकबूलियत है ना हुकूमतों की वो आवाम के अंदर नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम ही इस तरह से है कि जहाँ पे मकबूलियत नहीं, उनको कबूलियत चाहिए होती है, और वो कबूलियत जब हो जाए तो फिर उनको आवाम की फिक्र नहीं होती। और यही हम देख रहे हैं, पिछली कई दहाइयों से यही सारे मसाइल चले आ रहे हैं कि लोग ये सियासतदान वोट आवाम से लेते हैं, बात आवाम की करते हैं, लेकिन यहाँ पे मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत होना बहुत जरूरी है। खाकानी साहब, आप भी अग्री करेंगे यही वजह है कि आवाम का सोचा नहीं जाता? ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी कहीं पे कोई ये इंटरेस्ट है ही नहीं कि जो गरीब तबकात हैं, जो मुतासरा लोग हैं, उनके लिए करना चाहिए, और अपने भी नहीं करते। देखिए, हमने तो माजी में भी बहुत बार देखा कि जब इनके अराकीन असम्बली जो है उनके अपने मफादात होते हैं, अपने अलाउंसेस इजाफे के पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी हो जाती है, उससे हुकूमत और अपोजिशन में फर्क भी खत्म हो जाता है। तो ये जो है मतलब अब मेरे पास तो अल्फाज की बात है कम पड़ रहे हैं इसकी मजम्मत करने को, ये गलत है, बिल्कुल इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। आईनी तरमीम के बाद ये रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है कि ऑपोजिशन को भी कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, अपोजिशन को रिलीफ देना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि बहरहाल आप अपोजिशन को अगर क्रैश करके रखेंगे, उनको दीवार से लगा के रखेंगे। और देखिए, सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक बात तो ये होती है कि भाई जो एक कोई भी शख्स जिस पे मुकदमात हैं, केसेस हैं, अगर उसकी जमानतें हो जाए, अदालत जमानत कर ले और बाद में एक नया केस बना दिया जाए, तो ये तो फिर इस तरह के एक बदनीति दायर कर रहा होता है और वो गलत होता है। तो इस तरह हमने बहुत देखा है पिछले 2-3 सालों में, तो बहुत आते हैं। पिछले दौर में भी राहत इमरान खान के दौर में भी अपोजिशन को निशाना बनाया जाता रहा। ये दोनों तरफ ऐसे ही हर हुकूमत, अब बदकिस्मती ये होती है कि हमारी जो हुकूमत आती है वो ये सोचती नहीं है कि कल को अपने अपोजिशन में जाना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये फर्ज कर लें 2 मिनट के लिए, अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए सोच लें मौजूदा हुकूमत वाले लोग कि कल को ये अपोजिशन में होंगे और फिर आईनी बेंच हो, उस वक्त जो हुक्मरान जमात होगी वो बनाएगी, तो इनका क्या हाल होगा? तो ये अगर सोच लें तो ये बहुत सी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन ये सोचते नहीं है। ये सब अपने सिर्फ आज भी नजर होती है, आने वाले कल पे हमारे यहाँ नजर ही नहीं होती है, बार बार ये गलतियां करती हैं। चलो, तहरीक इंसाफ को तो एक बार हुकूमत मिली थी ना, अभी तो 3-3 बार 4-4 बार हुकूमतें कर चुके हैं नून लीग पीपल्स पार्टी, उसके बकार लोग हैं, इन्हें पता है कि हर चंद साल बाद चीजें बदल जाती हैं। लेकिन ये भी अपने आज में वक्त का पहिया घूमने है, जो साइड ऊपर है उससे नीचे जाने ही जाने। आदिल साहब, ये जो मरात दी गई हैं, क्या जजेस की मरात में इजाफा भी आईनी तरमीम का हिस्सा था? नहीं, आईनी तरमीम का हिस्सा तो नहीं था। ये एक बातचीत काफ़ी देर से चल रही थी कि शायद हुकूमत जो है वो जजेस को मरात में इजाफा कर दें, और इसको वजारत कानून ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका एक नोटिफाई किया है। 26वीं तरमीम के हवाले से तो कुछ नहीं था, लेकिन आने वाले दिनों में यकीन जजेस
کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ ان کی سیلریز جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. 2 ملین سے زیادہ ایک جج صاحب جو ہے وہ تنخواہ لیں گے. خاقانی صاحب بات کرے تھے کہ اخلاقاً تو ججز کو کہنا چاہیے کہ اضافہ بہت زیادہ ہے, لیکن کون کہتا ہے موجیں ان کی لگ گئی ہیں, ان کو تو بہت زیادہ خوشی ہوگی. کون یہ کہتا ہے کہ اتنی ہمیں مراد, اتنا ہمارے لیے خوشی کا باعث حکومت کا یہ فیصلہ ہے, ہم انہیں کہیں کہ فیصلہ واپس لیں, تھوڑا کم کریں. دیکھیں نا, میں نے جیسے پہلے کہا کہ جولائی میں تو ابھی اضافہ کیا گیا تھا, اور اب 1 سال بھی جو ہے وہ اس سے بھی کم اس میں دوبارہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تو ان کے لیے تو خوشی کا مقام ہے جی, ان کو مراعات مل رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, جو اخراجات بڑھ رہے ہیں, اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو جو ہمارا مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کی جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے, تو حکومت نے ان کی مراعات بڑھا دی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو 60,000 کیسز ہیں جو ایک عدلیہ کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنے ہوئے, جس کی وجہ سے ججز کی تعداد بھی بڑھائی گئی تھی, تو وہ کتنی جلدی جو ہے ان کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ ہو پائے گا. کیونکہ یہاں پر تو ہمارے ججز جو ہیں وہ مخصوص کیسز لگاتے ہیں, مخصوص کیسز سنتے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ تاریخ پر تاریخ پڑتی رہتی ہے. اصل مسئلہ تو یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان تو چلے جو ہے سو ہے, جو لوئر کورٹس میں جو حال ہے, جس طرح سے عوام وہاں پس رہی ہے, جو ہائی کورٹس میں حال ہے, تو اصل فوکس, توجہ اور ججز کی تعداد میں اضافہ تو اس طرف ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ہمارا جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ اوپر سے شروع ہوتا تھا اور اس کے اثرات پورے ملک پر جاتے تھے, تو اس لیے کوشش کی ہے حکومت نے کہ اس کو بیریئر لگا دے. پہلے انہوں نے آئینی ترمیم کر کے بیریئر لگا دیا سپریم کورٹ کو, تاکہ ان کے فیصلے جو ہیں حکومت کے لیے پرابلم نہ کھڑی کر سکے. مراد میں اتنا اضافہ کر کے اتنا خوش انہیں کر دیا ہے کہ کوئی بھی فیصلے ہیں اس میں وہ ایک دفعہ سوچے ضرور کہ بلکہ ججز کی جو مراعات ہے, پرک اینڈ پریویلیجز ہیں, اس میں پاکستان کی جوڈیشری تقریباً 10 ممالک جن کو پرکس اینڈ پریویلیجز ججز کو مراعات اور سہولیات ملتی ہے اس میں آتے ہیں. اور انصاف کی فراہمی میں ہماری جوڈیشری کا نمبر ہے 124واں. مجھے حیرت ہوتی ہے, یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ججز کی مراعات اور سہولیات میں پاکستان 5 اور 10 پہلے 10 ممالک پہ ہے دنیا میں, اور انصاف کی فراہمی میں پاکستان 124ویں نمبر پہ ہیں. مسٹر چیئرمین, ہمارا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے 2020 کی جو سروے ہے, اس میں 180 ممالک میں ہماری جوڈیشری 120 نمبر پر آ گئی ہے. اور ہماری ججز کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک جج کی پینشن جو ہیں وہ 6 اور 7 لاکھ ہیں. اور مجھے نیشنل بینک کے ایک بندے نے بتایا کہ جس دن کسی جج کی پینشن کی ادائیگی ہوتی ہے تو ہم باقی پینشن سے کہتے ہیں کہ آج چلے جائیں, آج باقیوں کو ادائیگی نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی تعداد میں تو پینشن لیتے ہیں, لیکن انصاف کہاں ہے؟ مراعات ہے, سہولیات ہیں, تنخواہیں ہیں, پینشن ہیں, پروٹوکول ہیں, لیکن 2.1 ملین پینڈنسی ہے اور کوئی انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا. اور سپریم کورٹ کا اور اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ وہ سونے کی چابی سے کھلتا ہے. جس کے پاس سونے کی چابی نہیں ہے اس کو عدالت تک رسائی ممکن نہیں ہے. انصاف خاص طبقے تک محدود ہے. غریب عوام پاکستان کی عدالتوں سے, انصاف سے وہ محروم ہے. مسٹر چیئرمین, جج صاحبان کہتے ہیں کہ کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہے, کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں, کوئی مقدس گائے نہیں ہے. لیکن میں جج صاحبان سے پوچھتا ہوں, جب یہ پینڈنسی ہے, جب آپ لوگوں کی کارکردگی یہ ہے, تو کیا کنٹمپٹ آف کورٹ کی آڑ میں آپ لوگ سیکرٹ کاؤ تو نہیں بنے ہوئے؟ کنٹمپٹ آف کورٹ کی آڑ میں, توہین عدالت کی آڑ میں کیا ہمارے اعلیٰ عدلیہ اور ہمارے جسٹس صاحبان وہ خود سیکرٹ کاؤ تو نہیں بنے؟ So, and look at it's really in fact a political bribe so that they can, please these people. It is not that they will not be corrupted because they got so much money. That was the idea behind it, to pay them heavily. But that's what it is, and this is how it has deteriorated, and this is how mercilessly these people have received so much increase in their salary. And whether you curse them, spit on their face, and you look at that, they get it done by your people, the people who are Form 47, who are, fugitives, and it's always the fugitives the administration or the establishment or the deep state actors put it to them. So the strings of the puppets are over there somewhere. They are not in the Senate, they are not in the National Assembly or provincial assemblies. They are, where they are. So that's what you are,
And that's where we have been, and we've been cheated, we've been blinded for the last 75 years. So what is it you do? Well, get suffocated if you are a little bit of air residual left in your lungs. Either you breathe the polluted outside with the maximum pollution, which is 1000, exceeding 1000 Lahore, in fact, is the most polluted city in the world, or you get suffocated, put your hands on your throat and suffocate yourself and leave this world. Or in what I'm saying is, if the suicide was not haram, then commit suicide. I'm not advocating, and I hope you won't do it. But they have pushed you to that edge. At least majority of Pakistanis, the white colors, who you do not want to, have bribed, who do not want to rob the country, you do not want to kill, no arson, no nothing. So that's what you are. Only just make two corners meet, and that's all. And one little sickness, one little surgery, one little, someone have a fight with, or what, something which your state doesn't like it, and you are gone. Your property will be demolished, your house will be demolished, you will be sent a fine of millions, and that's it. That will change the whole life of yours and your children. And with this little note, I will show you now the faces of those people who have done this to you, and they've been doing it. Please subscribe to this channel and leave your kind comments. Press the bell button and subscribe so that the latest vlog or the analysis reaches you in time.